Hello everyone. We hope your preparations are going well. So this is for May 24 students. Since May 24 is an amendment term and generally students end up only browsing through MTPs, we wanted students to actually solve MTP 1 and 2 of uh, ICI. So which is why that is how we've told all the students across all the uh, portals and all the students registered for offline, online, live recorded, all these students, that please solve MTP1. In fact, we've also shared the question paper with you all. In case you haven't got it, I'm sure you can connect with the office and they'll give it to you. If you have solved MTP1, this video is relevant for you. If you haven't solved MTP1 till now, this video is irrelevant for you, so don't go through this video. Solve this MTP and then this video will be relevant for you. खाली वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, सोल्यूशन देख के कोई फ़ायदा नहीं है. आप कर सकते हैं, आपका इच्छा है, बट अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि एक बार 2-3 घंटा लगेगा, 3-3.5 घंटा, लेकिन एक बार पेपर सॉल्व कर लो अच्छे से. एक बार ये 2 MTP कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा आपका एंड पेपर अटेम्प्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे. आ जाओ जिन्होंने MTP सॉल्व कर लिया है, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. Most students would have studied FM and SM both from us. Some students might have studied only SM from us. Either ways हमने MTP का FM एंड SM दोनों पार्ट इसमें वीडियो में डिस्कस किया है. तो अगर आप खाली SM भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए FM वाला पार्ट बोनस है, और अगर आप FM SM है तो ऑब्वियसली आपके लिए तो दोनों एप्लीकेबल ही है. सो वी गॉट बी डिस्कसिंग बोथ द FM एंड SM पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर. आ जाइए. पेपर पैटर्न्स आई एम श्योर आपको पता है. अपने लिए 15 मार्क का MCQ है, दोनों में 50-50 एंड 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से एक ऑप्शन आ रहा है. सो अपने लिए 10 मार्क का ऑप्शन रहेगा, यानी अपने लिए 45 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें से 35 अटेम्प्ट करना है अपने को, एंड 15 मार्क का MCQ है. द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. पार्ट 1 इज MCQ, पार्ट 2 इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. पार्ट 1 इज 15 मार्क्स MCQ. आ जाइए. NV Industries is a manufacturing industry which manages accounts receivable internally. It supplies small articles to different industries. The total sales ledger of the company stands at rupees 200 lakhs, of which 80% is credit sales. So, sales 200 lakhs, credit sales 80%, 160 lakhs. Company has a credit policy of 2/40, net 120. Past experience indicates average out of the total 50% customers avail discount and the balance of the receivables on 120 days. यानी 50% 40 दिन में देगा डिस्काउंट चाहिए तो, बाकी 50% 120 डेज में देगा. 40-120 का एवरेज, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड 160/2, 80 डेज. ओके. Bad debts are around 1% of sales. Bad debts 1% of credit sales, obviously. ये ध्यान देना, पूरा सेल्स पे 200 पे मत लगा देना. कुछ लोग तो पूरा समी 200 पे कर दिया होगा. The CFO is examining the possibility of outsourcing its factoring service. अच्छा, फैक्टरिंग का समय 2,40,000 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है. क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन है 240. The main elements are: it will charge 2% commission, it will pay advance against receivable at an interest of 18% after withholding 10% as reserves. Okay. लोन भी ले सकता है 15% पे, या वर्किंग कैपिटल लोन ले सकता है 14% पे. ओके. What is the average level of receivables of the company? तो 80 days का क्रेडिट है, 160 lakhs का. $160 lakhs into 80 by 360.
35,55,556. Answer is B. How much advance factor will pay? तो सेल्स है, डेटर्स है 35,55,556 माइनस रिजर्व 10%, 355 555 5.55 हो जाएगा ना, 50-60 कर लो, 32 lakhs माइनस इंटरेस्ट माइनस कमीशन, कमीशन तो 32 लाख पे लगेगा, है ना, है ना, है ना। ऑब्वियसली वो कलेक्शन तो पूरा कर रहा है अपने लिए, खाली 32 लाख का कलेक्शन थोड़ी ना कर रहा है, तो कमीशन तो पूरा पे लगेगा। 35, 55, 556 इंटू 2%, 71,111। इंटरेस्ट कटेगा रिमेनिंग अमाउंट पे, तो माइनस करके कितना आएगा, 31, 28, 889। इसके ऊपर इंटरेस्ट काटेंगे, इंटरेस्ट विल बी एट 15%, नहीं कितना परसेंट था, 18% फॉर 80 days। एक 25, एक 56, 30,3,733 आया एग्जैक्ट फिगर। देखो समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? तो फैक्टरिंग का कॉस्ट अपने लिए लगेगा कमीशन प्लस इंटरेस्ट, it is coming to 125,156 प्लस 71,111। ये तो 80 डेज का इंटू 360/80, 883, 199, वो 200 पकड़ लेंगे, 883, 200। व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? नेट कॉस्ट, इसके वजह से बचा क्या अपने लिए, तो इसमें से 2,40,000 क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन का बच जाएगा। बैड डेब्ट्स कितना है, 1% ऑफ सेल्स, 160 लैक्स था ना, तो 1.6 लैक्स, 1,60,000, 4 लाख माइनस हो जाएगा, तो 483 हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? तो इफेक्टिव कॉस्ट हो जाएगा अपने लिए 483, 200 ऑन अ टोटल ऑफ 160 lakhs।
सॉरी, अपने को एडवांस तो इतना ही मिल रहा है, 483 200 बाई 3003, 16.0866 0866 16.09। देखो कैलकुलेशंस भी समझ में आ रहे हैं ना भाई। अपने लिए तो हर हर पैसा 80 डेज पहले आ रहा होगा एवरेज में, तो हर पैसा पे 80 डेज का इंटरेस्ट निकालेंगे। और टोटल डेटर्स में तो पैसा 30 लाख सीधा ना, तो 30 लाख के ऊपर पूरा साल का इफेक्टिव कॉस्ट है 16.09% पर एनम। पूरा साल मेरा डेटर्स 483, ये अपने मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में समझे थे कि अगर मेरा डेटर्स 4 लाख है तो वो पूरा साल 4 लाख रहता है। होल्डिंग परचेजेस एंड सेल्स आर इवनली थ्रू आउट द ईयर, खाली डेटर्स का नाम बदलता रहता है, हर साल थोड़ा सा पैसा, हर दिन थोड़ा पैसा मिलता है, थोड़ा पुराना डेटर से पैसा मिल जाता है, नया डेटा क्रिएट हो जाता है, लेकिन डेटर्स उतना ही रह जाता है 4 लाख। फिर नेक्स्ट डे वापस पुराना कुछ डेटा से पैसा मिल जाता है, कुछ नया डेटा क्रिएट हो जाता है, वापस डेटर्स उतना ही रह जाता है 4 लाख। देखो क्लियर है क्या? Next, Ramu wants to implement a project of for which 25 lakhs is required. Following options are available: equity 25 lakh, equity pre for debt. What is the indifference point? Corporate tax rate 35%. देखो इक्वेशन तो याद रहना चाहिए अपने को। अब अगर इक्वेशन क्लियर है तो एक्सक्यूज मी, दोनों साइड नेगेटिव फिगर आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट। थ्री टू जीरो 512 आ रहा है, 513 पकड़ लो। 320512.83, हाँ तो ठीक आएंगे ना 513। और ईपीएस भी निकालना है, तो ईपीएस निकाल दो 0.65 इंटू दिस बाई 25,000, 8.33। आंसर इज बी। ये समझो कि एमसीक्यू में तो हम मेहनत लगेगा, ऐसा नहीं है कि इजी पीजी में एमसीक्यू है खाली। अच्छा ये इजी पीजी आ गया एक तो। If EBIT increases by 6%, net profit increases by 6.9%. If sales
Increase by 6 on net financial leverages, percentage change in EPS by percentage change in EBIT. So FL will be equal to 6.9 by 6. 1.15 आंसर है. मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स 3 साल. थ्योरी वाला आ गया, इजी पीजी आ गया. ओके, ये था अपने लिए एमसीक्यू वाला पार्ट फॉर द एफएम पार्ट ऑफ द पेपर. कंफर्टेबल एंड क्लियर है ना? देख लो. नेक्स्ट आ जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में. अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 120. तो अपने लिए वॉल्टर मॉडल लगाना है. वॉल्टर एक मिनट. ओके डी तो निकालना है ना. ई हो गया 27 क्या? अच्छा नहीं, 54 लाख में पहले 2 लाख 24 लाख हट जाएगा ना. तो ई हो जाएगा 54 माइनस 24/2 15. R22 RE15. So 120 is equal to D plus 15 minus D into 22 by 15 by 0.15. अठारह D plus 22 minus 22 by 15 D. सिक्सटी बाई 7 8.57 आया अपना. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो गया? 8.57 बाई 15. अप्रोक्सीमेटली 57.14%. देख लीजिए. हम इसलिए यहीं पे सॉल्व कर रहा था कि क्वेश्चन आंसर सब आपके सामने सामने रहे. ओके, नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ AN इन मार्केट वैल्यू टर्म्स. 50%, 50%, 10% no tax world, and capital markets assumed to be perfect. Okay. Mr. R owns 8% of the equity shares of ALN. Determine his return on if the company has net operating income of rupees 10 lakhs. No tax. EBIT 10 lakh. KO 20%. Therefore, value of company EBIT by KO 5 lakh. Therefore, value of
डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि 50-50 है, 5 लाख। Therefore, सॉरी ये 50 लाख होगा ना, 10 लाख बाय 20%, तो ये 25 लाख होगा। हाँ 10 लाख 1/20% यानी इंटू 5, 50 लाख। 50 लाख इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, यानी डेट 25 लाख है, इक्विटी 25 लाख है। देयरफॉर इंटरेस्ट कॉस्ट 25 लाख का 10%, 2.5 लाख। EBIT 10 लाख, इंटरेस्ट 2.5 लाख, तो नेट इनकम 7.5 लाख। ROE 7.5 लाख बाय 25 लाख, %30। और मिस्टर आर को क्या मिला? मिस्टर आर 8 नहीं, रिटर्न 8% ऑफ 7.5 लाख। भाई पूरा कंपनी का रिटर्न था 7.5 लाख, तो उसको मिला 60,000 रुपया। देखिए मिस्टर आर्स रिटर्न इज 60,000, ROE है 30%। क्लियर हो रहा है? Prepare the balance sheet from the data. Total debt to equity share capital is 60%, यानी 1,20,000। उसके अंदर करंट डेट टू टोटल डेट इज 50%, तो लॉन्ग टर्म डेट 60,000, करंट डेट 60,000, टोटल 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70%, 1,40,000। तो करंट एसेट्स आएगा 220, नहीं 180। अब बोला टोटल एसेट्स टर्नओवर इज 2.5 टाइम्स, तो टोटल एसेट्स का टर्नओवर विल बी 2.5 टाइम्स, यानी 640 और 160, 8 लाख। 8 लाख का 10%, inventory will be 80,000. So other current assets balancing figure 1 लाख। देखो हो गया खत्म, यही है।
क्लियर है ना? चेक कर लीजिए। ओके, 2a एक अच्छा सम है। ओल्ड मशीन विच कैन प्रोसेस 5000 यूनिट्स, न्यू मशीन अप टू 15,000 कर सकता है, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट्स डिमांड टू बी 10,000 यूनिट्स पर वीक। ये ध्यान देने वाला था। पुराना मशीन 5,000 क्वांटिटी बना के बेचता था, नया क्वांटिटी 15,000 कर सकता है, लेकिन डिमांड 10,000 ही आएगा। तो नया में 15,000 अपने बना के नहीं बेच पाएंगे, अपने 10,000 ही बेच पाएंगे। तो इंक्रीमेंटल सेल्स विल बी 5,000 यूनिट्स। इनिशियल कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ मशीन 100 करोड़, वर्किंग कैपिटल 3 करोड़, और कुछ है क्या? टर्मिनल कैश फ्लो, सैलवेज मिलेगा 20 करोड़, वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाएगा 3 करोड़। ओके, अब अपना इनिशियल कैश फ्लो, ये देखो इनिशियल और टर्मिनल अपना फिक्स हो गया। अब खाली एनुअल सी फैट निकालना है अपने को। ईच टीवी सेल्स फॉर 30,000 एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन इज 10%, यानी 3,000 रुपया। द कंपनी वर्क्स फॉर 56 वीक्स इन अ ईयर, होता ही नहीं है, 52 वीक्स होता है। क्या करता है लोग सम बनाते टाइम। सो बेसिकली अपने लिए हो जाएगा 56 इंटू 5,000 इंटू 3,000, 84 करोड़। एनुअल कंट्रीब्यूशन 84 करोड़, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट 10 करोड़, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन विल बी 25%। WDV मेथड, estimated machine will have no scrap value। अच्छा, एग्जिस्टिंग मशीन विल हैव नो स्क्रैप वैल्यू, जो पुराना 5,000 वाला मशीन था, नया वाला का तो 20 करोड़ अपने को बोल ही दिया है। तो इसमें क्या करना चाहिए, टैक्स रेट है अपना 40%। तो 100 करोड़ पर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा 4-5 साल। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप 5 साल का अलग से ऐसे कर लो, या आप सिंगल कॉलम में फिक्स कॉस्ट माइनस करके टैक्स माइनस करके निकाल लो, इग्नोरिंग डेप्री, और फिर डीटीएस डेप्रीसिएशन टैक्स शील्ड अलग से निकालो। दो तरीका सिखाया है, या तो डेप्री माइनस करके पैट प्लस डेप्री सी फैट कर लो, या नॉर्मल पैट इग्नोरिंग डेप्री कर लो प्लस डेप्रीसिएशन टैक्स शील्ड कर लो। तो अपने नॉर्मल कर लेते हैं जो करते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा अपने लिए। एबिडा इज 74 74 74 74 74 माइनस डेप्रीसिएशन।
तो 1 करोड़ का 25%, और वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हर साल घटेगा। पहला साल 25, तो बचा 75 इंटू 25%, 18.75। 14.06। 7.91। तो अब तो इसमें वो भी आ जाएगा, कैपिटल गेन वाला चीज लास्ट में। पूरा फुल फ्लेजेड समय ही है। हाँ, एग्जाम में आइडियली इसको करने में टाइम लग जाएगा, थोड़ा लास्ट तक रखना। बुक वैल्यू एट एंड 23.73, सैल्वेज 20 करोड़, नेट लॉस 3.73 करोड़, कैपिटल गेन टैक्स सेविंग 40%, 1.492। हो गया। पीबीटी माइनस टैक्स पैट प्लस डेप्रिसिएशन सी फैट, पीवीआईएफ पीवी ऑफ सी फैट। तो ये आएगा आपका सी फैट 54.4 फर्स्ट ईयर का खाली। सिमिलरली हर एक फिगर का निकाल दोगे।
सी फैट्स निकल गया सारा फाइनली। ट्वेंटी परसेंट। 45.33। 36.04। 28.95। 23.45। 19.11। So NPV will be minus 103 प्लस 152.88 प्लस ये टेबुलर होता, हम यहाँ पे जगह नहीं इसलिए वो ऐसे कर रहा है। 2324.492 इंटू 0.4019। 59.72 crores। चेक। एक छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं, आईसीआई के सोल्यूशन में उन्होंने ना सैलवेज पे टैक्स पकड़ते टाइम गलती से 30% ले लिया है, जबकि टैक्स रेट तो ऑब्वियसली 40% है सब में हर जगह, तो 40% लेना था। तो इसलिए आईसीआई का आंसर थोड़ा सा अलग है, 59.47 है, अपना 59.72 है, बट वी आर मोर एक्यूरेट, वी आर मोर करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली 30-40 पैसा के बीच में, 35 पैसा के आसपास का फर्क है, करेक्ट। $59.72। Right, a short note on cutoff rate. Obviously, cutoff rate is the minimum rate, kind of the required rate of return. It's the rate for any project जो अपने को चाहिए होता है. Generally, it is used as the discounting rate for us. Discounting rate is 16%. KO. Equity, retained earnings, bank loan, and debentures. Rate of interest on bank loan is 1.4 times that of debentures. Remaining tenure for debentures and bank loan is 4 years and 6 years respectively.
Book value of equity share, retained earnings, bank loan is 20 lakhs, 30 lakhs, 20 lakhs एंड डिबेंचर्स का बुक वैल्यू इज 30 lakhs, यानी टोटल 1 करोड़ का वैल्यू है. करंटली ट्रेडिंग है 98 पर डिबेंचर. कंपनी का पी इज 4, यानी के ई इज 1/पी रेशियो सिखाया है आपको. तो अपने लिए इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, डेट, लोन, वेट है 2, 3, 3, 2. उल्टा लिख लो, लोन पहले ना, लोन का 3, लोन का 2 एंड डिबेंचर्स का 3, 10. कॉस्ट 25%, 25%. रिटेन अर्निंग इक्विटी का सेम रहेगा. लोन डिबेंचर्स निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही निकालना है अपने लिए. इसका वेटेड एवरेज अपने लिए 16% है. लेट इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स बी एक्स. देयरफॉर केडी कितना हो जाएगा डिबेंचर्स का. रिडीमेबल है, यहाँ दिख रहा है अपने को, डिबेंचर्स 4 साल का है. x इंटू 1 माइनस 0.3 टैक्स रेट नीचे दिया है, प्लस 100 माइनस 98/4 बाई 100 प्लस 98/2. तो डिनोमिनेटर आएगा 99.7x प्लस 0.5 बाई 99. In fact, interest rate on debenture is x, so KD will be 100x. This will be 70x. KD loan 1.4x. .98x. तो अपने लिए 0.2 इंटू 25% प्लस 0.3 इंटू 25% प्लस 0.2 इंटू 0.98x प्लस 0.3 इंटू 70x प्लस 0.5 बाई 99 इज इक्वल टू 16%. बस यही तो आंसर निकालना है. 12.5%, 0.98 इंटू 0.2, 0.196x, 0.21x by 99 plus 0.15 by 99 is equal to 16%. Point 21 by 99. तो पॉइंट क्या होगा, तो 21 होगा ना. 21 by 99
plus 0.196, 0.4081x is equal to 0.16, 16 minus 12.5, 3.5%, 0.035 minus 0.15 by 99, 0.0015. That gives x is equal to 0.0350 minus 0.0015 by 0.4081. पॉइंट 0821 आ रहा है. 8.21%. ये हो गया अपने लिए केडी मतलब इंटरेस्ट रेट डिबेंचर्स. एट 8.21% interest rate loan into 1.4, 11.49%. That's the answer. क्लियर है ना? चेक कर लो. डिस्कस द डिविडेंड प्राइस अप्रोच टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. डी बाई पी होता है के इक्वल टू ओनली यूजफुल फॉर रेगुलरली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स. लेटेस्ट पेड डिविडेंड पास्ट ट्रेलिंग बेसिस पे होता है या एक्सपेक्टेड डिविडेंड फ्यूचर बेसिस पे होता है. एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट बेसिक चैप्टर 1 वाला है. शॉर्ट टर्म होता है, नैरो कॉन्सेप्ट है, डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कई सारे बिजनेस का लॉसेस वगैरह भी हो सकता है तो स्टार्टअप वगैरह के लिए मुश्किल होगा. मेथड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, बहुत सारा मेथड है, डायरेक्ट बुक आंसर है. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर द केओ इज मिनिमम एंड द वैल्यू इज मैक्सिमम. कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डायरेक्टली डिस्कस किया हुआ है. फाइनेंशियल लेवरेज इज द यूज ऑफ डेट to increase the return for equity shareholders. So trading on equity is basically using fixed rate return capital like debt and pref in your capital structure so that the ROE increases. ये अपने डिस्कस किए थे. डेट और इक्विटी यूज करने से अपने लिए डेट और प्रेफ यूज करने से अपना के ROE बढ़ रहा होगा. ये डेट प्रेफ यूज करके ROE को बढ़ाना इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज. देखो, दिस इज योर पूरा एफएम का मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस्ड 50 मार्क्स का. I'll start the SM part, but एक मिनट लेके पहले देख लो यहाँ तक क्लियर है ना अपने को. ओके, आओ अब अपने को SM वाला पार्ट में चलते हैं. SM में भी वही है, 15 मार्क का MCQ, 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. SM का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए सीधा पेज नंबर दे देगा आपको. In a fiercely competitive automobile industry, Zing, a promising newcomer, set out to a strategic journey with ambitions of making a substantial impact. Recognizing the significance, Zing forged partnerships with established dealerships, offering attractive margins. 80% of the nation dealership by expanding its coverage significantly. 2 key strategies: prioritize design, achieving impressive 15% growth, implemented switching cost to discourage customers from switching away to other brands, protected them from going away. They were branding themselves as a premium product, however the execution fell down.
क्वालिटी इश्यूज वगैरह हुआ, रिजल्टिंग इन मिक्स्ड रिव्यूज. द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फेल शॉर्ट, इनकंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलने लगा, डिक्लाइनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन होने लगा, टार्निश्ड ब्रांड इमेज लीडिंग टू स्टैग्नेशन ऑफ सेल्स. Zing's reputation suffered. Difficult decision to postpone their ambitions for the next 5 years, focusing on their finances and rebuilding their brand image. Okay. What approach did they use to expand their presence? कॉस्ट लीडरशिप तो नहीं था, सस्ता का कहीं बात नहीं किया, एंटरिंग न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स नहीं था, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन बोलेंगे. ए. हाउ डिड द जिंक प्रोडक्ट इज कस्टमर्स? स्विचिंग कॉस्ट लगाया था, प्राइस कटिंग, स्विचिंग कॉस्ट लगाया था, इंटरनेशनल एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं था. बी होगा. Why did Zing's differentiation strategy fall short? Intense price competition का कहीं बात नहीं है, inconsistent quality and service, directly words था बुक में. Forging partnerships with established dealers to enhance its distribution network falls under which category? कॉर्पोरेट लेवल तो नहीं होगा. एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप विद डीलर्स, दिस इज ओवरऑल बिजनेस लेवल का स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं इसको. दिस इज ओवरऑल बिजनेस लेवल का डिसीजन है टू क्रिएट न्यू पार्टनरशिप्स. हाउ डिड Zing initially expand its market presence across the nation? लो कॉस्ट का बात नहीं, पार्टनरिंग विद एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, लॉन्चिंग पार्टनरिंग विद एस्टैब्लिश्ड डीलरशिप्स था. सी. बुक का खाली लाइंस को पिक कर रहे थे. देखो पांचों क्वेश्चन 10 मार्क. ओके. Texmac, a leading technology company, offers a diverse portfolio of products ranging from established cash cows to promising. As part of their planning process, the company aims to assess its product portfolio's performance. In which quadrant of the BCG matrix would Texmac's new product lie? Recently launched in a rapidly growing market, likely fall. Rapidly growing market यानी या तो स्टार होगा या क्वेश्चन मार्क. डॉग और कैश काउ तो हट गया. और रिसेंटली लॉन्च्ड यानी हाई मार्केट शेयर तो नहीं होगा, सो इट शुड बी क्वेश्चन मार्क. हाई ग्रोथ, स्टार इज हाई ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर. दिस वाज हाई ग्रोथ बट रिसेंटली लॉन्च, तो हाई मार्केट शेयर नहीं होगा, अज्यूम्ड है. ब्लू स्काई, a multinational corporation, renewable energy, is undergoing a strategic transformation to enhance its competitive position. As part of this structure, the company is re-evaluating its organizational structure, processes and culture. Structure वगैरह चेंज कर रहा है. Which aspect of the McKinsey 7S model is most relevant? Most relevant बोल रहा है, वैसे तो relevant सारा ही होगा. स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है तो आइडियली स्ट्रक्चर ही होना चाहिए. इसके अंदर थोड़ा सा डाउट भी आ सकता है लोगों के माइंड में, बट टेक्निकली साफ बोला था कि स्ट्रक्चर मेन बदलने पे फोकस है, क्योंकि एक रकम से लगेगा सभी रेलेवेंट है. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज हाई व्हेन देयर आर फ्यू सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. फ्यू सब्स्टिट्यूट्स होगा तो हाई थोड़ी ना, रिस्क कम है. स्विचिंग कॉस्ट आर लो, सप्लायर्स हैव हाई बार्गेनिंग मेथड्स, देयर इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी. स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है तो सब्स्टिट्यूट का टेंशन नहीं है. स्विचिंग कॉस्ट इज लो तो इजीली स्विच कर सकता है. बी होगा. एमसीक्यूज क्लियर हो रहा है, देख लो. ओके. स्वाति इज द मार्केटिंग मैनेजर. Swati leads a team of marketing professionals. She also analyzes market trends
customer feedback, refining the marketing side, which level is she working at, discuss the roles and responsibilities of this level. She's a marketing manager, तो पता है functional manager है. फंक्शनल मैनेजर है तो कौन सा लेवल पे फॉल करेगा? ऑब्वियसली थर्ड लेवल है, फंक्शनल लेवल है. उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ दिया हुआ है? पेज 1.26. ABC Corporation, a multinational consumer electronics company, is planning to expand its operation into a new country. The company senior manager evaluating the potential risk and opportunities. As part of they decide to use the PESEL analysis. Okay. How can the PESEL help analyze the external factors? The chapter 2 में था ना PESEL. टू पॉइंट 1516. Imagine you are a consultant advising a small manufacturing company embarking on a digital transformation journey. ये word ही याद आना चाहिए, digital transformation journey. The company's leadership is concerned about managing the changes effectively. Outline a strategy to help the company navigate this transformation successfully. Using the best practices for managing change. यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस, पेज 5.25 वाला आंसर चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट. पार्टली प्रोएक्टिव, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट टू डेवलप स्टार्ट. सो अब ये सब में क्या है, आपको जो आंसर लिखना है वो डायरेक्ट खाली बुक का पॉइंट्स नहीं लिखना है, बट उसको रिलेट करवाना है. इन द सेंस, I'll explain 1 minute. प्रोएक्टिव रिएक्टिव कहां पे था? चैप्टर 1 में तो था. हाँ 1.5. अब यहां पे आपको समझाना पड़ेगा. It is facing increasing competition from online retailers. तो प्रोएक्टिव होके एंटिसिपेट करना पड़ेगा, टेकिंग स्टेप्स इन एडवांस करना पड़ेगा. अपना मार्केट पोजीशन इंप्रूव करने के लिए क्या हमने पहले किया है, कॉम्पिटिटर्स कुछ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से रिटेलिएट करना है, रिस्पॉन्ड करना है. सो रिएक्ट भी करना है, खाली प्रोएक्टिव नहीं होना है, खाली रिएक्टिव नहीं होना है. हेंस पार्टली पार्टली लाइन वही है कि पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होना चाहिए. खाली प्रोएक्टिव होने से भी नहीं चलेगा, खाली रिएक्टिव होने से भी नहीं चलेगा. इट हैज टू बी पार्टली पार्टली. लेकिन उसी चीज को एक्सप्लेन प्रॉपरली करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी एट हैंड. Strategy manager for a tech savvy launching a new smartphone. Using the customer behavior, develop a strategy to promote the new smartphone. Page 2.440. Customer behavior वाला part. A beverage company is launching a new line of energy drinks. Strategic manager wants to study the market position of rival companies. Strategic group mapping. Strategic group mapping
का पेज नंबर या 3.910 पकड़ लो. Develop an action plan for turnaround strategy. Turnaround strategy. $4.19. So why strategic performance measures are essential for organizations? Direct questions in last chapter. Amendments. Importance of strategic performance measures. Page 5.61. How can Mendelow's matrix be used to analyze and manage the shareholders effectively? कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस कम होगा, ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट कम होगा, ज़्यादा होगा, एंड अकॉर्डिंगली हाई पावर इन्फ्लुएंस लो इंटरेस्ट वाला. Mendelow's matrix, page 3.5. Concentric and conglomerate, chapter 4. Page 4.10 to 12. एसएम का पार्ट स्टैंडर्ड है जो पहले रहा करता था कि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच है. ना लिखते टाइम थोड़ा सा ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम जब आंसर लिख रहे हैं तो उसको केस से रिलेट करा के लिखना है. जो कहानी दिया गया है उससे कहीं ना कहीं स्टोरी लिंक करके लिखना है, तभी फुल मार्क्स अपने को अच्छे से मिलेगा. दैट इज द ओनली पार्ट हियर. सो फॉर एग्जाम्पल, अ बेवरेज कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू लाइन ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स. तो आप यहाँ पे लिखोगे द बेवरेज कंपनी इज wants to study the various rivals. There can be different rivals with different market shares. The strategic manager can use strategic group mapping for analyzing the market position of the rival companies in the energy drink segment. और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है, कैसे काम करता है. तो पहला 2-3 लाइन खास करके या एक पैराग्राफ खास करके इंपॉर्टेंट होगा जहां आपने इसको प्रॉपरली रिलेट कराएं केस स्टडी से. ये हर आंसर में डिस्क्रिप्टिव में खास करके रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है. टू बी एबल टू रिलेट टू द केस स्टडी इन द फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स एंड देन राइट द डायरेक्ट आंसर. लाइक आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स इन द क्लासेस, द आंसर्स विल ऑलवेज 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 बी डायरेक्ट. It will always be a direct answer from the question in the book. But you have to relate it to the case. You have to relate your answer to the case to be able to score well in the exams. Okay. I think the paper was standard. MCQs are decent. FM relatively easy था. Capital budgeting थोड़ा सा tough था, I agree. SM के अंदर क्वेश्चन are more or less straight forward है. एक या दो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन अगर आप रिवाइज ढंग से करोगे ना तो आप उसको इजीली पिक कर पाओगे. लाइक आई वाज बीइंग एबल टू पिक द राइट वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है. तो वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा. पिक द राइट वर्ड्स एंड बी एबल टू रिलेट. यू कैन ओनली डू दिस इफ यू हैव रिवाइज्ड वेल. सो 2 बार रिवीजन कर लोगे तो उसको हैंडल कर पाओगे. अगर इसको हैंडल करने में दिक्कत भी हुआ तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप पहला मॉक टेस्ट दे रहे हो. और मोर इंपॉर्टेंटली, अगर सारा रिवीजन नहीं होगा तो कई बार हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आए. लेकिन अगर 2 MTP कर लोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद दिक्कतें नहीं आएंगी. I hope you find the video relevant and useful, everyone. Keep revising, keep studying hard, everyone. All the best. And I hope MTP1 went well for the ones who tried. And all the best for the finally intermediate examination that you will be appearing. Not the final exams, but the intermediate exams that you will be appearing for. Feel free to connect with us on WhatsApp, call if you have any doubts, queries, but keep studying hard and all the best. I'll see you. Thank you.